اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امیگریشن رولز 1979 میں ترمیم کے خلاف پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا احتجاج جاری ہے۔ شہر کے تمام دفاتر کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ ترجمان پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے فیسز میں اضافہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے فیسز میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید اس پر کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے کاوش میمن۔ کاوش، بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا مطالبات ہیں ان کے؟ بالکل دیکھیں، امیگریشن رولز میں ترمیم کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن جو ہے وہ آج احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ 15 اگست کی احتجاج کی کال تھی اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو ظالمانہ فیصلہ کیا اس کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس ترامیم کے بعد جو لائسنس فیس تھی یا رینیول فیس تھی یا او پی ایف کا جو فنڈ تھا اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے آج ملک بھر میں احتجاج کی کال دی تھی اور پروڈکٹ دفاتر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو دفاتر ہیں وہاں پر آج صبح سے ہی احتجاج جاری ہے۔ جو پروموٹرز ہیں وہ پروڈکٹ نہیں کروا رہے، اس حوالے سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا آج صبح سے ہی احتجاج ہو رہا ہے، کیا مطالبات ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے آج ہم نے پاکستان کے تمام پروٹیکٹر آفس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسز میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں نمبر 1 او پی ایف فنڈ ہے جو کہ 2000 روپے تھا، اس کو فوری طور پر بڑھا کے 4000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ لائف کے 2500 روپے فیس تھی، اسے بڑھا کے 5000 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے لائسنس کی فیس جو تھی 15000 روپے تھی، اسے بڑھا کے 25000 روپے کر دیا، 25000 روپے سالانہ کر دیا گیا۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کو پچھلے کئی سال سے ہم 200 روپے کے حساب سے فنڈ دے رہے ہیں، جبکہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور حکومت پاکستان سے فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر او پی ایف فنڈ کا جو 2000 روپے بڑھایا گیا اسے واپس لیا جائے، اور جب تک یہ باہر جانے والوں پہ او پی ایف فنڈ کا ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے جتنے بھی پروموٹر حضرات ہیں وہ ہم ان لوگوں کو جو باہر ممالک میں خاص طور پہ گلف کنٹریز کے اندر جو ہم بھجواتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے پروموٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے جو پروموٹر حضرات لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں ان کے بھجوائے ہوئے لوگ وہاں سے زر مبادلہ پاکستان کے اندر بھجواتے ہیں، جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اور زر مبادلہ اس ٹائم سب سے زیادہ سعودی عرب سے یا گلف کنٹریز سے آتا ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں یہ تمام فیسز جو بڑھائی گئی ہیں انہیں فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو فیسز میں اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ بتا رہے تھے کہ او پی ایف فنڈ ہو، لائسنس فیس ہو، رینول فیس، سب میں انکریزمنٹ لگ چکا ہے، تو جو باہر جانے والے لوگ ہیں ان پہ کتنا بوجھ پڑے گا؟ باہر جانے والا ورکر جو ہے اس کو تو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے دفن ہی کر دیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر 2 سال باہر جا کر اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے اور یہاں اپنی زمینیں اور جائیداد بیچ کر قرض لے کر، سود پر قرض لے کر یہاں سے جاتا ہے، جو کہ اپنے بچوں کا روٹی روزی وہاں کمانے کے لیے وہاں بیرون ملک جاتا ہے۔ اس کو بھیجنے کا ذریعہ جو ہے ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں اور ہماری ایسوسی ایشن پروموٹرز ایسوسی ایشن ہے آل پاکستان۔ بالکل، دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ عدنان پڑاشا جو ترجمان ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ عدنان بھائی، یہ بتائیے گا احتجاج تو ہو رہا ہے، آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، آگے ہم نے حکام بالا سے درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہماری ایسوسیشن، ہماری کمیونٹی اس ٹائم پہ ہر وہ قانونی دروازہ کھٹکھٹائے گی جہاں سے ہمیں کوئی ریلیف مل سکے، جہاں سے ہمارے جو امیگرینٹس ہیں ان کو ریلیف مل سکے، کیونکہ یہ اگر اس طرح کے طریقہ کار کو جاری رکھا گیا تو ہمارے امیگرینٹ پہ اضافی بوجھ بنے گا۔ ہماری ایسوسیشن جو کہ پاکستان کی ریمیٹنسز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، 30 سے 31 ارب ڈالر سالانہ جو ریمیٹنسز لاتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ پڑے گا، کیونکہ ہم وہ ایسوسیشن، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم اپنے بوجھ ڈال کے باہر جا کے ریمیٹنسز کو جنریٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈز کو جنریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان سے اس ٹائم پہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ ہمارے 24 کروڑ پاکستانیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان، میں اس ٹائم پہ درخواست کروں گا وزیر اعظم صاحب سے، جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے، اور میں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہمیں آن بورڈ لیں، ہمارے مطالبات کو سمجھیں، ہماری گزارشات کو سمجھیں،
ताकि हम पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। जैसे कि आर्मी चीफ साहब ने अभी बोला है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा एहतजाज तो हो रहा है, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप हम कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करेंगे, हम कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस एहतजाज को सुना जाए, क्योंकि हम अल्टीमेटम वगैरह दे रहे हैं। देखें, हम अल्टीमेटली हम तो इस टाइम पे दरख्वास्त दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेली का जो प्रोटेक्टर है पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 3000 से 3500 प्रोटेक्टर होता है। हम जितने भी इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको हम नहीं रोक रहे, लेकिन हमारे प्रमोटर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं जो कि हम वर्कफोर्स बेचते हैं वो हमने पासपोर्ट्स को होल्ड किया है ताकि हमारे मुतालबात को इस मौके पे सुना जाए। अच्छा अदनान भाई, कब तक ये पटिशन जो है दायर की जा सकती है? और अभी तो एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज वसी होगा? देखिए जी, इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के 8 प्रोटेक्टर ऑफिसेज में आज तमाम प्रोटेक्टर ऑफिसेज में एहतजाज कॉल की हुई है और हर शहर के अंदर हमारी कम्युनिटी इस टाइम पे सरगर्म है और पीसफुल एहतजाज हम नोट करवा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हुकाम बाला आज ही हमारी इस दरख्वास्त को सुनेंगे और हमें ऑन बोर्ड लेंगे ताकि हम उनको लामल दे सकें कि किस तरह हम ये वर्कफोर्स को बढ़ा सकते हैं। इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की वजह से, दूसरे महकमा की वजह से, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह कवर अप करके इसी अनएम्प्लॉयड लोगों को हम एम्प्लॉयड करके पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ा सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं और लामल दे सकते हैं। इमिग्रेशन रूल्स 1979 में तरमीम के खिलाफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का एहतजाज इस वक्त जारी है। तमाम तर तफसीलात से काविश मेमन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में बिजली बंदिश ने कारोबारी तबके को भी मुतासिर कर दिया है। किमाड़ी जैक्सन लाइन, मवाज कोड नंबर और आयरन मार्केट में बिजली गायब है। 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग ने ताजरों की मुश्किलात में इजाफा किया। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि महंगी बिजली और उसकी हसूल में मुश्किलात हैं, जिसके बाइस कारोबार मुतासिर होता है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बसीम इफ्तिखार से जान लेंगे। बसीम, बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और कराची के शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। ओल्ड सिटी एरिया में टिम्बर मार्केट वाक़ है जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यह है कि टिम्बर को काटने वाली, लकड़ियों को काटने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो बेजान हो चुकी हैं और बेजान होने से उन पर जंग लगना शुरू हो गया है। बुनियादी वजह यह है कि लोड शेडिंग का जो जिन है यहाँ पर बेकाबू है। उस जिन की वजह से यहाँ के ताजिर भी परेशान हैं और उनके लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। कई घंटे की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है और इस वजह से ताजिर परेशान है कि किस तरीके से वो कारोबार कर सकेंगे। एक जानिब की इलेक्ट्रिक जानिब से बिजली महंगी कर दी गई तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से इनके लिए कारोबार करना अब इम्तिहान बन गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी। इनसे जानते हैं, शर्जील साहब, ये जो टिम्बर मार्केट है यहाँ पर मजमूई तौर पर कितने कारखाने हैं और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? एलानिया लोड शेडिंग कितनी है और गैर एलानिया लोड शेडिंग कितनी है? देखिए, जिस मार्केट में आप खड़े हुए हैं ये मार्केट वो मार्केट है जो $170 मिलियन का बिज़नेस करती है। सबसे बड़ी बात ये बताऊं, पाकिस्तान के जो 100 लार्जेस्ट टैक्सपेयर्स हैं उसमें 6 जो मेन लार्जेस्ट टैक्सपेयर्स हैं वो डिक्लेयर्ड इस मार्केट से, और ये ट्रेडर्स हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। टिम्बर मार्केट में 1600 से ज़्यादा दुकानें हैं, 400 के करीब कारखाने हैं हमारे पास, जिसमें इंडस्ट्रियल मीटर बाकायदा हमें दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल मीटर दिए गए हैं। और ये ब्रिटिश दौर से हमारे पास इंडस्ट्रियल मीटर है और ये मार्केट भी ब्रिटिश दौर से पहले, ब्रिटिश दौर से के टाइम की मार्केट है, बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। यह मशीनें जो देख रहे हैं हमारा इस वक्त जो है तकरीबन आप समझ लेंगे 1.5 साल से करीब हो चुका है कि दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट दी जाती है। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस गली में 2:30 से लेकर 4 बजे तक दोपहर को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है। ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है, जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती इस वक्त कोई भी। अच्छा, एक कारखाना ऐसा नहीं है, इसके बावजूद भी हम 100% बिल दे रहे हैं, हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। ये बताएं, मजमूई तौर पर कितने घंटे की लोड शेडिंग है और एलानिया है या गैर एलानिया लोड शेडिंग है? देखिए, 9 घंटे के अगर वर्किंग आवर्स में आप देखें तो सिर्फ 1.5 घंटे की हमें बिजली दी जाती है। 7.5 घंटे इस मार्केट में लोड शेडिंग है और कोई शायद एक आध गली ऐसी हो जिसमें 6 घंटे की लोड शेडिंग हो, लेकिन 7.5 घंटे की लोड शेडिंग मजमूई तौर पर हमने की जा रही है। ये या भी आप एलानिया समझें या गैर एलानिया समझें। जी बिल्कुल, ये थे शर्जील गोपलानी। आप ये देख सकते हैं कि जो ताजिर हैं ये इसी टिम्बर मार्केट से वाबस्ता है, इनका कारोबार, और इनके चेहरे जो हैं वो
परेशान हैं, सवालिया निशान इनके चेहरों पे आया, किस तरीके से कारोबार करेंगे। और भी जो ताजिर उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक के पास जब जाते हैं आप अपनी शिकायत लेके और अपने मसाइल लेके लोड शेडिंग के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ होता है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपने ये सवाल किया है कि आप के इलेक्ट्रिक से अब जाते हैं तो क्या क्या मसाइल हैं। कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा फॉर्म है जहां हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया। 12 यहाँ तक कि गवर्नर साहब ने कहा था जिसको किसी किस्म की भी तकलीफ आए मेरे दर पर आके मेरी घंटी बजा दे। हमने पूरे जो हमारे ये ताजिर हजरात थे वो पूरे जुलूस की शक्ल में वहाँ गए थे, बाकायदा 5 से 6 घंटे वहाँ हम बैठ कर आए, घंटे बजाए। जब हमें अंदर बुलाया तो गवर्नर साहब से मुलाकात हमारे, बोला वो है नहीं। उनके कोई साहब थे, उनसे मुलाकात, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट लिए, ठीक है हम इंशाल्लाह आपका 2-4 दिन के अंदर ये मसला हल करवा देंगे। वहाँ नहीं हुई। के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम के दफ्तर में हम गए, वहाँ उनसे हमने मीटिंगें की। हमारे ग्रुप ऑफिस के अंदर हम गए, उनको बुलाया, उनसे मीटिंग। बस वो आते हैं हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ हम फैसिलिटी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके यहाँ कुंडों का, भाई कुंडों का हम आपके साथ हैं, आप अपनी टीम भेजे। देखिए हम तो जाकर ऊपर से कुंडे नहीं उतारेंगे ना, ये अपनी टीम भेजे, हम उनके साथ चलते हैं, उनसे ताउन करते हैं हर किस्म का। लेकिन वो बस हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ इंशाल्लाह करें। और अभी ये हाल है कि पूरे दिन के अंदर 1.5 घंटा हमें लाइट मिल रही है। हम जब सुबह यहाँ से घर से आते हैं तो लाइट नहीं होती, बैठे होते हैं। ये कह रहे थे ताजिर के लॉलीपॉप दिए जाते, मसाइल हल नहीं किए जाते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि वो इलाके जहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग चोरी होती है वहाँ पर उस इलाके के हवाले से लोड शेडिंग की जाती है। यहाँ पर क्या ताजिर 100% बिल अदा करते हैं या यहाँ पर भी चोरी होती है? क्या सूरत हाल है यहाँ पे? देखिए, जो टिम्बर मर्चेंट के ताजरान हैं वो तो 1% भी चोरी नहीं करते और 100% जो है वो बिल पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम टैक्स पेयर लोग हैं। हमें क्या ज़रूरत है चोरी करने की? और इसके लिए इसका कोई मुतबादिल हल होना ज़रूरी है। अगर के इलेक्ट्रिक के यहाँ से चोरी होती है, उनका ये हम पे इल्ज़ाम है कि आपके इलाके में चोरी हो रही है, वो ज़िम्मेदार है। चोरों का ज़िम्मेदार तो जो है वो पुलिस और फ़ौज होती है ना, वो उनका इलाज करें। हमारे पास क्या इलाज है? हम तो सादा किस्म के लोग हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं, हम तो टैक्स पूरा देते हैं और बिजली का बिल भी हम पूरा देते हैं। इससे हमारा क्या वास्ता है? उनकी ज़िम्मेदारी वो हमें बिजली प्रोवाइड करें। आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल है, कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है, कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, और यही सूरत हाल रही तो फिर क्या करेंगे आगे जाके? ये तो आपको नज़र आना चाहिए। ये सब यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है इतनी, ये किस लिए खड़ी हुई है? कोई तकलीफ में है तो खड़ी हुई है ना, कोई किसी को शौक है यहाँ पर खड़ा होने का? इतना ये कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है वो पेट्रोल अपने हाथ से लगाता है, बिजली का बिल भरता है, और जो लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है यार? आप ये बताएं कि कारोबार कितना मुतासर हो रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से? जाहिर बात है कि जब ऑर्डर आते होंगे तो उन ऑर्डर को फुलफ़िल करना आपके लिए कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत मुश्किल है हमारे लिए कारोबार करना। ये सूरत हाल आपके सामने है। लेबर सारा दिन बैठी रहती है, कोई काम नहीं होता है। 1.5 घंटा मुश्किल से लाइट में आप क्या करोगे? 1.5 घंटा लाइट। ताजिर तबका परेशान है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। आला हुकाम के पास जाने के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा और कई घंटे की लोड शेडिंग। बिल की बात करें तो बिल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हर महीने जो है आ रहा है, मगर बिजली जो है नहीं भेजी जा रही, जिससे ताजिर तबका बहुत परेशान है। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें डॉलर की तो डॉलर तगड़ा और रुपया कमज़ोर हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 288.49 रुपये से बढ़कर 291.75 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर 291 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। मज़ीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, कारोबार के दौरान देखा जाए रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर की कदर में नुमाया कमी हो रही है। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया और 291 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कंसर्न है कि डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है उसके असर जो है ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में जो रेट आ रहा है, जो कंसर्न कर रहे हैं कि 300 रुपये के करीब एक बार फिर पहुंच गया है, जिससे दरामदी लागत बढ़ जाएगी, महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। निगरान वज़ीर के फैसले के बाद काबीना पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और MQM के नाम पेश कर दिए गए हैं।
इब्तदाई तौर पर 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। देखिए, कल जो है निगरान वज़ीर आला गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे और इसके साथ साथ निगरान सिंध काबीना के लिए मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक 10 रुकनी निगरान काबीना पहले मरहले में हल्फ देगी कि कुछ पहले इनकी निगरान काबीना के लिए जो नाम सामने आए हैं उसमें मुमताज़ अली शाह का नाम है, सिद्दीक मेमन है, मुश्ताक मेहर है, रिसात है, जबकि ये नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ दिए गए हैं। मुबीन जुमानी और जाम करम अली का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि कुछ नाम एमपी की तरफ से दिए गए हैं। इसमें शोएब सिद्दीकी हैं, यूनिस डागा हैं, फजलुल्लाह कुरैशी हैं। लेकिन ये हतमी नाम इसलिए नहीं है कि अभी भी कुछ नाम दिए जाएंगे, जबकि कुछ नामों पे और गौर हो रहा है। कुछ टेक्नोक्रेट और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट निगरान सिंध काबीना का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इन तमाम नामों पर मुशावरत कर रही हैं। इन रहनुमाओं से मुशावरत शक्ल दी गई तो जी, अभी नामों पर मुशावरत की जा रही है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ मीडिया हाउस सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 15 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 15वीं सालगिरह का केक काटा। अरसे पाक की सालगिरह के साथ ही सिटी 42 की सालगिरह का भी जश्न मनाया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने कामयाबी के 15 साल मुकम्मल कर लिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आमिर रजा खान के साथ दिलचस्प सवालात का तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जब ये चैनल शुरू हुआ मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा अपनों ने कहा कि क्या कौन देखेगा 42, कौन करेगा ये सारा कुछ। फिर इसी तरह अपने अजीज़ों ने भी बहुत सारों ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी टीम ने जिस तरह एफर्ट की तो इसको आगे ले गई। एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने अपने ख्यालात बयान किए। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, इनपुट हेड सिटी 42 सैयद ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी जाहिद चौधरी, शाहीन अतीक, अली खान, आमिर डार, मलिक अशरफ, इरफान मलिक, शाहिद सिप्रा, आबिद चौधरी समेत दीगर स्टाफ तकरीब का हिस्सा बना। सलीम बुखारी ने कामयाबी के सफ़र को अपने अल्फाज में बयान किया। मैं लेटरल एंट्रेंट हूँ, लेकिन बड़ा फख्र है मुझे इसके ऊपर। ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, कॉज भी है उनकी, ये सक्सेस स्टोरी भी है उनकी। मेरे ख्याल से एक एक वर्कर जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लीडरशिप तो अपनी जगह मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन जो काम आप लोगों ने किया है ये कोई और नहीं कर सकता। सिटी 42 हमेशा लाहौर की आवाज बना, सनसनी नहीं, हमेशा बेबाक, खरी और मोतबर खबरें दी, बड़ी और बेहतरीन रिपोर्टिंग टीम, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज़ रूम। जिदोजहद और कामयाबी का सफर अब भी जारी है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कराची ऑफिस में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह का केक भी काटा गया। सिटी 21 के प्रोग्राम एंकर्स और कराची ऑफिस के स्टाफ ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। वहीं सिटी 21 ने भी अपने नाज़रीन के लिए खूबसूरत और दिलकश ट्रांसमिशन सजाई, जिससे नाज़रीन खूब महसूस हुए। आज़ादी के रंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क के संग सिटी 21 एक बार फिर कवरेज में सबसे आगे। जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में जहां शहर भर की तकरीबात, रैलियां और दीगर तफरीही प्रोग्रामात की लाइव कवरेज की गई, वहीं मुख्तलिफ सियासतदानों, शोबिस समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने सिटी 21 ऑफिस का दौरा किया। एंकर पर्सन रमशा कंवल के प्रोग्राम में शिरकत की और केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुत्तहदा पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, रऊफ सिद्दीकी ने कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जिस दिन कोई बड़ा त्यौहार आता है, अगर आज जश्न आज़ादी है, तो हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके मकासद क्या थे। क्या पाकिस्तान जब बना था और आज जहाँ हम खड़े हैं, हम कितना आगे गए, कितना पीछे गए,
क्या हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाई, हम लेकर आए हैं, या उसमें कोई और ख़राबियाँ हुई हैं। आज इस शहर का अगर हशर आप देखें, ये शहर वो है जो कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों का की नस्लों का शहर, हमारे आबा व अजदाद ये जो 20 लाख जानों का के नजराने की बात होती है, ये किसने नजराना दिया? हमारे बड़ों ने दिया है। आप के जो मालकान हैं, जो यहाँ के CEO हैं और जो पूरी टीम है आपकी, उन सब को भी 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खून आशाम तारीख़ है जिसमें 20-22 लाख लोगों की कुर्बानी है। पूरा बरे सगीर का एक शहर, एक गांव उजड़ा था तो ये पाकिस्तान आबाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। समाजी कारकुन हसन बेग, अदाकारा एमी खान, डिजाइनर यूसुफ बशीर कुरैशी, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय, बशीर सिद्दीकी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल डॉक्टर कमर रिजवी, डॉक्टर जावेद, आलिया सारिम और डायरेक्टर सिंध रेस्क्यू डॉक्टर आबिद ने भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ सिटी न्यूज की काविशों को सराहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपना एक हकीकी रोल अदा किया है, लोगों को इतलात पहुँचाने का, लोगों को खबरें पहुँचाने का और सही माने में मस्बत खबर पहुँचाने का। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सिटी न्यूज़ के तमाम मुलाजमीन, तमाम मुतल्लिका अफसरान। सेलिब्रेशन पहले से कहीं ज़्यादा है माशाल्लाह। डिजिटल दौर है लेकिन वो अपना उसके इब्लाग का एक ज़रिया है और उसके ज़रिए भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं और क्राउड और पब्लिक और बढ़ गई है। 15 साल से इनकी काविशें और कोशिशें हैं, यानी सिटी न्यूज़ और एक अरसा, एक मुद्दत, एक मेहनत इन्होंने हर उस जगह को दी है जो कैमरे की आंख कैद कर सके। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस सफ़र में सिटी न्यूज़ को। पाकिस्तान में क्यों जो है वो हम जब कहते हैं कि जी बिजली नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि जब लोगों को मुसावी हुकूक़ दिए जाएंगे तो उस मुसावी हुकूक़ के अंदर जो है वो लोगों की पजीराई हो जाएगी और लोगों का एहसास महरूमी नहीं होगा। उधर मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और शोबी सितारों ने मुल्की सलामती के लिए दुआएं की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल नहीं हो सका। मोहम्मद अली सोसाइटी के रहायशी बूंद बूंद को तरस गए हैं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। कराची में हम जिस तरफ निगाह घुमाएं उस तरफ जो है मसाइल के अंबाल लगे हुए नज़र आते हैं। इस वक्त मैं मोहम्मद अली सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ पर जो पानी के मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि कब से कितने मसाइल हैं और कितने दिनों से यहाँ पर पानी बंद हुआ है। सर मसला ये है कि तकरीबन 8 दिन तक पानी नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई, इलाके वालों को भी, सोसाइटी वालों को भी हुई। तो हम बाला हुकाम से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे मसले मसाइल पे तवज्जो दें और इन मसलों को हल करते रहें ताकि हम लोग इन तकालीफ से बचते रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूसी चेयरमैन भी मौजूद हैं जुनैद बगादी साहब, उनसे जानते हैं कि इधर क्या मसाइल हैं। कुछ पाइप्स लाइंस की भी मसाइल हैं, उसके हवाले से बताइएगा जुनैद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मसला ये है कि हमारा जो इलाका है वहाँ पर अमीर खुसरू रोड से 48 इंच की लाइन जा रही है और ये 48 इंच की लाइन अपना ड्यूटी फ्री शॉप तक जा रही है शारे फैसल सर्विस रोड पर। अब वहाँ से पहले ही जो वाटर माफिया है, जो टैंकर माफिया है, जो पानी बेचने वाले हैं, उन्होंने पहले ही वहाँ से 24 इंच की लाइन ले ली है। अब वहाँ से वो 18 इंच की मज़ीद लाइन ले रहे हैं जो शारे फैसल वो ड्रिल करके सुराख करके नीचे से ले गए और रेलवे फाटक भी नीचे से ड्रिल करके ले गए। फारान है, कोकन सोसाइटी है, आलमगीर रोड है, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, ये पूरे इलाके को पानी मिलता है उस किडनी हिल के पानी से। अभी उसमें 8 से 10 फीट पानी मिल रहा है और फिर ये 48 इंच की लाइन से अगर वहाँ से और पानी ये ले गए तो हमें तो 8 फीट पानी भी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हमें पानी कम दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हमारा पानी पूरे इलाके का ले लेंगे तो हम उस पर ज़ाहिर है हम अपने इलाके का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। तो इस पर हमने शदीद एहतजाज किया है और हमने वाटर बोर्ड के MD से भी बात की है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं कि भाई ये पानी हमारे इलाके का चोरी ना किया जाए। जी बिल्कुल, देखा आपने हमारे साथ यूसी चेयरमैन साहब मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो मसाइल हैं ये पानी जो है वो चोरी होने की वजह से हैं और मज़ीद पानी पहले ही कम था और मज़ीद जो है वो इनसे पानी ले लिया जाएगा तो मज़ीद जो है उनमें इजाफा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और वहाँ पर भी दरख्वास्त जमा करवाएंगे। जी। मीरबहर टाउन की यूसी 4 जहानाबाद में वाक़ बल्दिया उस्मा कराची के रिहायशी कंपाउंड बरसों से मुरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, UC4 मेवा शाह मोरड़ो मीर बहर टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे कायम हैं KMC के जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में रिहायशी आबादियाँ हैं उनके मुलाजमीन के हवाले से स्टाफ कॉलोनी। ऐसे ही एक कंपाउंड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद है। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि 30 के लगभग ये रिहायशी फ्लैट हैं जो कि तवील अरसे से ये कायम हैं, लेकिन इंतहाई मखदूश सूरत हाल से ये दो चार हैं। इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनमें तशवीश की लहर पाई जाती है। सजन यूनियन के रहनुमा हैं आसिम राजा, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, ये तो बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल दिखाई दे रही है, पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, मेंटेनेंस क्यों नहीं होती और क्या यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका मुतालबा? मेंटेनेंस इधर हो रही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस भी काटा जा रहा है और हाउस रेंट भी काटा जा रहा है। मेंटेनेंस जो है बेसिक से 5% कट रहा है और हाउस रेंट जो है वो 1 ग्रेड से लेके 1 ग्रेड का कम से कम जो है 2040 रुपये है और 11 ग्रेड तक 6000 रुपये हाउस रेंट काटा जा रहा है और बेसिक से 5% प्लस मेंटेनेंस अलाउंस भी काटा जा रहा है। और उसके बाद हाल ये है कि यहाँ पर किसी टाइम भी कोई हादसा रुनुमा हो सकता है। M&D डिपार्ट या B&R डिपार्ट, ये M&D डिपार्ट हो या B&R डिपार्टमेंट हो, वो काम इधर नहीं कर रहा। कितना बजट इसके लिए रखा जाता है, कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है? ये बजट सन 2005 से जो है उन्होंने बंद कर दिया था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। उससे पहले हमारे इधर पंखे भी ये खुद लगाते थे, ट्यूबलाइट भी चेंज करते थे और कलर का काम करते थे, मेंटेनेंस का तमाम काम ये डिपार्ट करते थे। लेकिन 2005 के बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ और उससे पहले भी जो है ना नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम ये सामने फ्लैट में जो है तकरीबन 94 में कलर हुआ है, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल तबाह हाल है पूरी ये इमारतें और यहाँ पर मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो तमाम टैक्सेस हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, इनसे हाउस रेंट भी वसूल किया जा रहा है, मेंटेनेंस की मद में भी रकम काटी जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस हो नहीं रही है, जिसकी वजह से उजड़े दयार का मंजर जो है ख़तरनाक अंदाज में ये इमारतें दिखाई दे रही हैं। फौरी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, KMC हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है। जी, कोरंगी और लांढी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर, बारिश के दिनों में बंद होने वाले कासवे रोड पर पुल बनाने की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से कराची वालों के लिए जो नए तोहफे का ऐलान किया गया था वो था कोरंगी कॉजवे का ब्रिज। और इसका मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि इफ्तिताह मेयर कराची की जानिब से किया जा चुका है, इसकी तख्ती भी यहाँ पर लग चुकी है। ये बेसिकली मंसूबा जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है बनाया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे मंसूबे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो कराची में शुरू किए गए हैं। ये मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और मंसूबा है कोरंगी कॉजवे पर जो है ओवरहेड ब्रिज की तामीर। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसको तामीर करने का बड़ा मकसद ये था कि बारिशों के दौरान कोरंगी कॉजवे अक्सर बहकर जो है वो नदी के अंदर निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोरंगी से मुख्तलिफ रोड्स का राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है और सारा जो लोड है वो जाता है इस जानिब मौजूद जाम सादिक ब्रिज पर। और यही वजह है कि जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कहा गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खास इस हवाले से मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि ये जो ब्रिज है ये यहाँ पर अब 12 माह के अंदर 12 माह की कलील मुद्दत के अंदर जो है वो पूरा किया जाएगा। और इस सिलसिले में किसी हद तक काम होता हुआ ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस स्पॉट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कोरंगी कयूमाबाद से आता है और कयूमाबाद के बिल्कुल एन ऊपर आकर यहाँ पर फिर इसके बाद कॉजवे स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे बैक पर आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये बेसिकली कोरंगी कॉजवे कहलाता है, जो कि क्रॉसिंग पर जाकर ख़त्म होता है। बताया जा रहा है ब्रिज तकरीबन 2.30 किलोमीटर तवील होगा। 12 माह की कलील मुद्दत में इसको मुकम्मल किया जाएगा। 4 अरब रुपए इसके ऊपर जो है वो लागत आएगी। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोरंगी रोड से क्रॉसिंग जाना होता था, तो बारिश के दिनों में ये रोड जो है वो बंद हो जाता है। चाहे केरथर पहाड़ों के ऊपर पानी आए तो वो जो मलीर नदी का पानी है वो आके इस रोड को मुतासिर करता है और बंद कर देता है। यही वजह है कि कोरंगी इसके अलावा मलीर, इसके अलावा लांढी के अवाम जो हैं वो शहर के वस्त में नहीं आ सकते थे, मगर ये मंसूबा जब बन जाएगा तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होगा कोरंगी के लोगों के लिए कि माल बरदार गाड़ियां हैं जो माल लेकर शहर के दूसरे हिस्सों में जाती हैं उनको भी आसानी हो जाएगी। तो 12 माह के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है और ये तोहफा है मेयर कराची की जानिब से कराची वालों के लिए। नाज़रीन, शहर कायद में डेयरी माफिया बेकाबू है, सरकारी निर्खों को रद्द करके खुद ही रेट तय कर लिए हैं। तफसीलात बताएंगी आयमा खान।
हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। शहर कायद में महंगाई जो है वह बदस्तूर आसमान पे है। दूध जो बुनियादी ग़िज़ा है उसकी कीमत में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि सरकारी कीमत दूध की 180 रुपये, लेकिन जबकि दुकानों पे दूध जो है वो 220 से 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ दूध की कीमत जब बढ़ती है तो साथ ही साथ जो दही है उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। सब्जियों की कीमतें वैसे ही आसमान पर हैं। लोग जो है वो टमाटर के मुतबादिल दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दही की कीमत भी हम देख रहे हैं कि 300 से 340 रुपये में फ़रोख्त हो रही है दही भी। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर बताइएगा, दूध की कीमतों में उतार चढ़ाव की क्या वजूहात है? कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट में दूध जो है वो 180 रुपये, जबकि दुकानों पर दूध 220 से 230 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसकी क्या वजूहात है? मेन वजूहात तो ये है कि डेयरी फार्मर की मनमानी है। जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट करके आते हैं और बाहर जो है दुकानों वालों को किसी और रेट पे सप्लाई करते हैं। और जो खुली बदमाशी करते हैं वो ये है कि आपने दूध लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप कमिश्नर कराची से जाके लो। जी बिल्कुल, दुकानदारों के साथ साथ हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जी सर बताइएगा कि दूध की क्या कीमत होनी चाहिए आपके हिसाब से? दूध की 150 या 160 कीमत होनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, बच्चे पीते हैं घर में। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार और ख़रीदार मौजूद थे। आपने सुना इनका ये कहना था। दुकानदारों का ये शिकवा है कि डेयरी फार्मर जो है वो दूध महंगा बेचते हैं, इसी वजह से दुकानों पे भी जो है दूध की कीमत में इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ शहरी जो है वो इस बात का मुतालबा करते हैं कि दुकानों पर जो दूध की कीमत है वो 150 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो बुनियादी ग़िज़ा है और इसके बगैर जो है लोगों का गुजारा नहीं होता। और गरीब आवाम के लिए दूध की जो कीमत होनी चाहिए वो 150 रुपये होनी चाहिए। जी कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी पावर रेहान जावेद ने बिजली की कीमतों में कमी पर जोर दिया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। देखा जाए बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है, अब सवाल ये होता है कि क्या बिजली किसी सूरत सस्ती हो सकती है। यहाँ पे काटी के जो स्टैंडिंग कमेटी के जो नेपरा के चेयरमैन हैं रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, हर कोई ये सवालात करे, बिजली इतनी महंगी हो गई, क्या सस्ती हो सकती है? कोई तजवीज़ है? देखिए जी, बिजली की कीमत का ताल्लुक दो चीज़ों से है। नंबर वन, उसकी फ्यूल कॉस्ट क्या है, और नंबर टू ये कि आप उसको, जो आपके पावर प्लांट्स RLNG के लगे हुए हैं, उनको आप कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अपने बिजली बनाने के लोगों ने कारखाने लगाए हुए हैं, उस पर कोई नज़रसानी करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर वही वाली गैस जो हम इनएफिशिएंट जनरेटर को, जो 30% एफिशिएंट जनरेटर को दे रहे हैं, वही अगर हम 60% एफिशिएंट पावर प्लांट, पाकिस्तान में अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बड़े एफिशिएंट पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। 4 पिंडी, ब्लोकी, BQPS3 और बिकी, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं और इनकी नेट वैल्यू जो है वो 60% आती है अगर आप इसमें कोई भी फ्यूल इस्तेमाल करें। अब ये समझ लें कि 4000 रुपये की RLNG इस्तेमाल करने के बाद भी जो ये बिजली बना रहे हैं वो 22-23 रुपये की बना रहे हैं, और ये नेपरा और नेपरा की रिंग से आप निकाल सकते हैं। अगर हम इनको ये सस्ती वाली गैस 1100-1200 रुपये वाली गैस अगर हम इनको दे देंगे तो ये बिजली बनाएंगे 7 से 8 रुपये की, तो आपकी बिजली की इमीडिएटली प्राइस कम हो जाएगी। जब बिजली की प्राइस कम होगी तो हमारे कारखाने, एक्सपोर्ट के कारखाने और हमारे लोकल कारखाने जो कि आज बिजली की कॉस्ट पास ऑन ना करने की वजह से बंद पड़े हैं या 70-60% प्रोडक्शन पे आए हुए हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम करेंगे। उससे आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी। बाइंग पावर बढ़ेगी, ये कारखाने चल जाएंगे। जब कारखाने चल जाएंगे तो उसके बाद आपके टैक्सेस के रेवेन्यू बढ़ेगा। आपका जो सब्सिडीज़ का लेवल है, जो गवर्नमेंट फेडरल बजट में एलोकेट करती है, सब्सिडी कम होगी। टैक्स का पैसा सब्सिडी में देने के बजाय ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर, नई इंडस्ट्री के ऊपर, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होगा। जी, जैसे आपने सुना यहाँ पे काटी की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, बहुत ही आसान तजवीज़ दी है, बहुत ही अच्छी तजवीज़ है कि बिजली कैसे सस्ती हो सकती है। उसके लिए जो पावर प्लांट हैं उसके लिए कहा है कि उनको जो कुदरती गैस के साथ जो मिक्स एनर्जी अगर फराहम की जाए तो सस्ती बिजली बन सकती है। यहाँ पे जो बोझ बढ़ता जा रहा है और मुल्क भर में जैसे कि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको कम करने का एक तजवीज़ दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद हुकूमत को करना होगा। जी, सिंध सरकार की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के इंतज़ामी अहम ओहदों पर तैनात अफसरान ने ओहदे संभाल कर महकमों का इंतज़ामी उमूर चलाने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानिब से 20 और 21 ग्रेड के अफसरान के मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर तैनाती करने के बाद में इन अफसरान ने आज पहले हफ्ते के रोज़ जैसे दफातर खोले तो उन्होंने ओहदों का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है। उनमें जो है गुलाम अली ब्रह्मानी, सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का ओहदा
संभाल लिया, जो इससे कबल स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल चैलेंज थे। इसके अलावा सोहेल अहमद कुरैशी जो तकरीर के मुंतजर थे, उनको सेक्रेटरी सेहत के अहदे पर तैनात किया गया था, उन्होंने भी महकमा सेहत का अहदा संभाल लिया है। इसके अलावा नजमुद्दीन सेहत उन्होंने DG मरीज सरकारी अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी संभाली है। आगा अब्दुर्रहीम ने सेक्रेटरी मैदनियात का भी अहदा संभाल लिया है। अब्दुर्रहीम शेख ने वज़ीर-ए-आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इजाफी अहदा भी वज़ीर-ए-आला हाउस में संभाल लिया है। 21 ग्रेड के अफसर हैं सैयद खालिद हैदर शाह, उन्होंने भी सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड का अहदा संभाल लिया है। जबकि 20 ग्रेड के अफसर नासिर अब्बास सुमर ने DG कराची तरक्याती अथॉरिटी यानी KDA का अहदा भी संभाल लिया। साबिक वज़ीर-ए-आला के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज अहमद जतोई ने भी सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का अहदा संभाल लिया है। जी आज़ाद सेक्रेटरी सेहत सुहेल राजपूत ने महकमे सेहत सिंध में 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद की है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से महकमा सेहत के सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का तबादला करके तकर्र के मुंतजर और साबिक सेक्रेटरी महकमा बराए आपाशी के सेक्रेटरी सोहेल अहमद कुरैशी को नया सेक्रेटरी सेहत तैनात करने के बाद में आज उन्होंने जैसे अपना ओहदा संभाला है तो ओहदा संभालते ही फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई है और 119 ग्रेड के मुलाजमीन के तकर्र व तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी का जो है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक आयद कर दी गई है, जिसका महकमा सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि निगरान सेक्टर में जो है सेक्रेटरी जो है सोहेल अहमद कुरैशी ने ओहदा संभाला, जिसके बायस उन्होंने तकर्र तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो।